Assalamu alaikum. Welcome back on my channel. Acha, today we have another discussion related to the past paper question. Again, we have the series of past paper questions. जो already I have told you कि we have selected some technical past paper questions according to the examiner reports. Okay. Now, the topic of this past paper question is again related to the Venn diagram and paper May June 19 paper variant 1 2. Okay, so the questions is related to the Venn diagram. Use the notations to describe the shaded region in the Venn diagram. It is 1 mark question. वो कह रहा है कि आपने इसको notations means कि A intersection B intersection A और A union B. These are kind of notations. इसके अंदर आपने इसको describe करना है. Now this is the shaded region of this Venn diagram. Okay, so in the part B, this symbol normally in the exam paper we use for sample space. This is kind of some technical symbols, and we can use S instead of this kind of the symbol. Same kind of things. X such that X is a positive number. यानी सैंपल स्पेस जो है वो किसी भी पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर कॉन्सिस्ट करता है. ठीक है. Similarly, A, it is another set which value lie between 9 and 10, यानी neither equal to 9 and nor equal to 10, यानी ये ना 10 है ना ये 9 के बराबर है, मिडिल ऑफ दिस वैल्यू है. इसका मतलब है कि दिस वैल्यू अल्टीमेटली विल बी अ इररेशनल नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, होल नंबर नहीं होगा. इट विल बी द नंबर व्हिच लाई बिटवीन 9 and 10, so it means के greater than 9 will be equal to 9.1111 and so on, 9.12, 9.13, and the last value ultimately will be end up till 9.9999, not equal to the 10. Okay, so these value you will have in this set A. Similarly, B such that X यानी B equal to X such that X is a irrational number. Irrational number means कि which number which you do not have a perfect square. 81 का perfect square 9 है, 36 का 6 है, 4 का perfect square is 2, तो it means कि 3 which does not have the perfect square, 5 which does not have a perfect square. So this B set concept of these element which does not have the perfect square, इनका perfect square नहीं होता. ठीक है, उसको हम irrational numbers कहते हैं. Write down an element of A intersection B. हमने इन दोनों sets का intersection find out करना है और इसको set notation के अंदर हमने लिखना है. Now let's start for part 1, question number 10A का part A करते हैं. Yes. Okay, तो first of all मुझे एक बात बताओ कि there are 3 sets P, Q, R. Okay, and P and Q, this region is common region P and Q, but all the elements clear are not the part of this shaded area. अच्छा, अब देखो बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं क्या कि भाई तुम्हें यूनियन मालूम करना है, समझाने के लिए कह रहा हूं कि यू नीड टू फाइंड आउट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता लेट्स से 3 सेट्स है P यूनियन Q यूनियन R. ठीक है, ये सेट नोटेशन है. एलिमेंट ऑफ P यूनियन Q यूनियन R. किस तरह लिखेंगे बच्चों? इसको डायग्राम में बनाएंगे. इसको डायग्राम में मैं इस तरह बनाऊंगा, समझाने के लिए बता रहा हूं. आप डायरेक्ट आंसर लिख दिएगा, मैं जस्ट समझाने के लिए बात बता रहा हूं. ठीक है, तो हम इसको यूं बनाएंगे. ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, एंड दिस वन इज थर्ड सेट. तो ये आपके पास P Q R. तो ऑल द शेडेड रीजन, so this is okay.
दिस इज P यूनियन Q यूनियन R। ओके, अब तुम्हें इसमें से Q को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? यानी Q को अनशेड करना है। तो अगर मैं Q को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं क्या लिखूंगा, Q का सब्ट्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q का सब्ट्रैक्शन होता है वो एलिमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट which does not have element of Q। क्लियर? अब हम ये लिखते हैं Q complement are the number of elements which do not lie in Q, जो Q में लाई नहीं करते। क्लियर? तो उसको क्या करेंगे, हम अनशेड कर देंगे। तो ये वो एलिमेंट हो गए जो Q में लाई नहीं करते। वाई? क्योंकि हमने इसको अनशेड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सेट नोटेशन को लिखूं तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा अंदर Q डैश, क्योंकि ब्लैंक है तो ये क्या कहलाएगा, Q डैश कहलाएगा। एलिमेंट विच डज नॉट लाई इन Q, जो Q के अंदर लाए नहीं करते। तो अब मुझे किसका इंटरसेक्शन चाहिए, मुझे यानी ये तीनों का नोटेशन चाहिए। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ P intersection R। clear? right? intersection P यूनियन R का किसके साथ इंटरसेक्शन लिया हुआ है, Q डैश के साथ। क्लियर? P यूनियन R, P यूनियन R। क्लियर? और ये भी शामिल है, इसका मतलब है इसके साथ इसने इंटरसेक्शन लिया हुआ है P यूनियन R। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यू भी लिख सकते हैं, दैट इज P यूनियन R माइनस Q। ओके, तो माइनस Q मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, P यूनियन R माइनस Q। सो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो इट इज द बेस्ट वे टू राइट, कि मैं इसको यूं लिख देता हूं, P यूनियन R माइनस Q। क्लियर? इट इज अ सेट नोटेशन, P यूनियन R माइनस Q। ये मैंने लिख दिया, Q माइनस कर दिया मैंने, किसमें से, P यूनियन R में से मैंने Q को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? राइट? तो ये मेरे पास सेट नोटेशन हो गई इन द फर्स्ट पार्ट, सिंपलेस्ट वे के अंदर, कि Q को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब ही इसको मैंने शेड नहीं किया, इसमें से P यूनियन R में से, यूनियन में ये भी शामिल होता, इसमें से पूरा Q मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ये रीजन पूरा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम P यूनियन R। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, और P और R यूनियन को और भी लिखते हैं, P और माइनस Q, यूनियन को हम ये भी लिखते हैं, P और माइनस Q। राइट? यूनियन को हम ये भी लिख सकते हैं। तो नाउ यू कैन कंप्लीटेड द फर्स्ट नोटेशन ऑफ पार्ट ए। नाउ द सेकंड नोटेशन इज कि x इज अ पॉजिटिव नंबर। s जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, बट वी do not consider the s here. We have to take the intersection of these two sets,
हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर हमें इंटरसेक्शन लेना है। कैसे लेंगे हम इसका इंटरसेक्शन? हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे 9। तो यानी अगर मैं ए को लिख सकता हूं तो ए एलिमेंट मैं इस तरह लिख सकता हूं, ए विल बी द सेट ऑफ 9.11 212 एंड सो ऑन। ये इस तरह चलता जाएगा, मुझे नहीं पता कितने डिजिट तक है। सिमिलरली 9.2111 and so on. The last value will be 9.999 and so on. It will not be equal to 10. Okay, 10 से छोटा है। Okay, अब x is a irrational number. Irrational number मतलब b की वैल्यू आपके पास फॉर एग्जाम्पल जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? वो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जिनके परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यूज जो होंगी हमारे पास यहां से शुरू होंगी। राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ, यानी कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है हमारे पास जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 4 3, ठीक है, एंड 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, ये यहाँ पे 9 भी आ जाएगा, एंड देन 9.11 एंड सो ऑन, एंड ये कंटिन्यू है बिकॉज इट इज नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है। अब तुमने इनके इंटरसेक्शन निकाल ले, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ये सारे एलिमेंट तुम रिजेक्ट कर दोगे, इनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सेट। तो जो ए के अंदर है, जो इस यहां से यहां तक लाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर द पार्ट ऑफ बी इटसेल्फ। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 9.11212 एंड सो ऑन, जो आपके पास 9.99 एंड सो ऑन। सही है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, जो आपके पास ये एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो एलिमेंट सेलेक्ट करने जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां तो ये हमारे पास अनडिफाइंड है, पॉजिटिव नंबर कह दिया है, इज अ पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव वाले तो मैं नहीं लिख सकता, आयोटा आ जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, 2 से भी हो सकता है। सही है, 2 3 4 5 इनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। सो नाउ यू कैन टेक दिस वैल्यू, बट यू विल सेलेक्ट फ्रॉम आफ्टर 9। 9 नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि 9 इसमें हमने क्या किया है, x ग्रेटर देन 9, और नाउ यू विल सेलेक्ट 10। तो middle of these values you will select which will be the part of your A intersection B. So it is your required answer. It is your required answer. Clear? So बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब मैं ये मिटा दूं क्योंकि ये मेरा यूनियन था, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट बताना था which element are not the part of A। तो मैंने यानी Q माइनस कर दिया उसमें से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए पी यूनियन आर में से मैंने क्यू के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, दैट इज योर सेट नोटेशन। और नाउ सिमिलरली यू कैन सॉल्व इन दिस वे टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी। एंड इट वाज फ्रॉम माय साइड, and try to solve and try to understand these questions. Now we are moving towards the next question of this paper. Thank you so much.